Hi guys, Hello, and I'm Megha, I'm Anurag. and this is Poems with Friends, where we read a poem and try to feel something. Yes, this is episode 15. No, 16. 16. तो आज के एपिसोड में हम एक ऐसी पोएम करेंगे. एक्चुअली आई वॉज नॉट फीलिंग एनीथिंग. मैंने बहुत सारी पोएम्स पढ़ने का ट्राई किया. दिस इज़ अ वंडरफुल बुक, द पोएट्री फार्मेसी, बट आई वॉज नॉट फीलिंग एनीथिंग फ्रॉम एनी ऑफ द पोएम्स. So I thought that maybe let's do a poem which addresses the fact of not feeling anything. Hmm. है ना? ठीक है. Do you want to read? Hmm. Keep writing for your audience. To what purpose April? Spring by Spring by Edna St. Vincent Millay. To what purpose April do you return again? Beauty is not enough. You can no longer quiet me with the redness of little leaves opening stickily. I know what I know. The sun is hot on my neck. As I observe the spikes of the crocus, the smell of the earth is good. It is apparent there is no death. But what does it signify? Not only underground are the brains of men eaten by maggots. Life in itself is nothing. Life in itself is nothing. An empty cup, a flight of uncarpeted stairs. It is not enough that yearly down this hill, April comes like an idiot babbling and strewing flowers. no. It's funny, it's funny. I knew you would like it. Because every time हम कोई बहुत सेंटिमेंटल टाइप की पोएम करते हैं, यू आर ऑलवेज लाइक कि ओ बट इस सेंटिमेंट में रैशनैलिटी क्या है, या इतना इंटेंस तो मैंने फील ही नहीं किया. तो आई थिंक मुझे ऐसा लगा था कि तुझे ये पोएम काफ़ी पसंद आएगी. I love. I love कि when people are slightly dry and like कि ड्राई ह्यूमर. तो इसमें वो है कि आ गई बड़ी. ये स्टार्टिंग से करते हैं. Let's do from the beginning. ठीक है. To what purpose, April, do you return again? Beauty is not enough. I think वही first two lines very strong starting है ना. वो तो हमने हर पोएम में ही देखा है. Like getting right into it. It's not even कि वो जो टोन वो यूज़ कर रही है कि अरे क्या बकचोदी चल रही है तुम्हारी, वो एकदम से स्टार्टिंग से ही उसने वो टोन ले लिया है. ऐसा नहीं है कि वो केयरफुली जा रही है, ट्रेड कर रही है. स्टार्टिंग से ही शी इज़ लाइक कि अच्छा बताओ क्यों आए हो फिर से, मतलब क्या क्या चाहिए तुमको. Okay, beauty is not enough. Beauty is not enough. No, you have to. Yeah, I'm gonna give. Take away your. Okay. Take back your pretty privilege. Give me some meaning. Give me some meaning. ठीक है. To what purpose, April, do you return again? Beauty is not enough. And beauty is not enough is also a very, मतलब ऐसा होता है ना, very strong line कि strong and succinct. आई थिंक पोएट्री में जितना हमने देखा है, दो ही चीज़ें वर्क करती हैं. या तो तुमने कुछ एकदम ही अलग तरीके से बोल दिया जैसा किसी ने बोला ही नहीं था, मतलब कि आई वॉकड इनटू अ बार एंड ऑर्डर्ड अ चाइल्डहुड ड्रीम, तो वैसा कुछ बोल दिया. वाह. On the verge of a poem. नहीं, ये मैंने पढ़ा था कहीं. अच्छा ठीक है. Okay. या फिर आई थिंक तुमने कोई बहुत कही हुई ऑलरेडी नोन चीज़ बोली, बट तुमने बहुत कॉन्फिडेंस से और बहुत सक्सिंक्टली बोली. तो तुमने ब्यूटी इज़ नॉट इनफ एकदम बोल दिया कि ये है. मुझे ऐसा नहीं कि राउंड अबाउट वे में कुछ उसको शुगर कोट करके बोलना है, बस मैंने कह दिया ब्यूटी इज़ नॉट इनफ. But also this is also a way of saying. It is also a different way of saying. Okay, it's not imagery wise different, but it is tonally wise different. ओके. Okay, it is different. Okay, if you say कि the sun is shining, it is succinct, like it tells you. But राइट. beauty is not enough is so intriguing. Oh, you're saying कि it's what like के हाँ unpopular opinion type का हो गया. it's an unpopular opinion and Right, you are saying कि it's not about using different imagery, different tone can also be the thing. I think then it makes कि poetry is very much about your individuality. कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने दोनों words different use करे, but it's not just about different, it's about कि मतलब तुम्हें truly क्या feel हो रहा है. कि जैसे अगर मैं पेंटर भी हूँ तो मैंने सिर्फ एक घर की या माउंटेन्स की पेंटिंग बना दी, तो उस पेंटिंग को कोई देखेगा नहीं. मतलब मैंने कुछ डिफरेंट बनाया इन द सेंस कि
मुझे जो ट्रूली फील हुआ, इवन इफ इट इज़ अनपॉपुलर ओपिनियन, इवन इफ इट इज़ समथिंग डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, तभी लोग देखेंगे। तो पोएट्री में भी एक तरीके से वही है कि तुमने कुछ या तो नई तरीके से बात बोली, या तुमने ऐसी बात बोली जो बाकी लोग बोलने से डरते हैं या एक्सेप्ट करने से डरते हैं, तो तुमने एक ऐसी चीज़ बोल दी, तो उस पोएट्री का मतलब हुआ कुछ। ठीक है। You can no longer quiet me with the redness of little leaves opening stickily. I know what I know. ठीक है। I think what I also like is कि the alternation of lines कि होता है ना, to what purpose April do you return again? Beauty is not enough. तो एक उसने बोला कि अप्रैल से पूछा, फिर beauty is not enough, एक लाइन मार दी। You can no longer quiet me with the redness of little leaves opening stickily. I know what I know. तो एक उसने ऑब्जर्वेशन करी, या अप्रैल को उसने डायरेक्टली एड्रेस किया, और फिर उसने अपनी एक ट्रूथ वाली एक लाइन मार दी। पैटर्न भी अच्छा लगा एक तरीके से। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग कि टॉकिंग टू अप्रैल, टॉकिंग टू वनसेल्फ, टॉकिंग टू अप्रैल, टॉकिंग टू वनसेल्फ। राइट। You can no longer quiet me with the redness of little leaves opening stickily. इस लाइन में आई थिंक मुझे तो ऐसा फील हुआ कि इट्स नॉट जस्ट वही, इस लाइन में एक तरीके की ब्यूटी भी है। मतलब वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि जिस तरीके से उसने डिस्क्राइब किया रेडनेस ऑफ लिटल लीव्स ओपनिंग स्टिकली से लिटल लीव्स ओपनिंग स्टिकली, ऑल्दो स्टिकली इज़ नॉट अ वेरी कन्वेंशनली ब्यूटीफुल वर्ड, बट जब तुम रेड लीव्स को स्टिकली इमेजिन करते हो तो एक थोड़ी सी एक मतलब प्यारी सी चीज़ इमेजिन होती है कि हाँ कि there is a blue, it's with the gentle, very fragile beauty. तो वही, ऐसा नहीं है कि उसने ऐसे ही बोल दिया कि you can no longer quiet me with stupid red flowers. तो वो उसने बोला था, तो आई थिंक उसका इफेक्ट चला जाता, क्योंकि वो अवेयर भी, मतलब वो एक्नॉलेज भी कर रहा है कि ब्यूटी है, तो वो दिखा रहा है ब्यूटी, मतलब दिखा रही है, सॉरी दिखा रही है ब्यूटी। तो मतलब इमेजिन वही, इस लाइन की जगह अगर ऐसी लाइन होती, यू कैन नो लॉन्गर क्वाइट मी विद स्टूपिड रेड फ्लावर्स, कि देन इट वुड बी लाइक आई एम, हाँ कि अग्री कि मैंने एक जजमेंट बना ही ली है, और अब मैं सिर्फ जजमेंट बता रही हूँ एज अ रीडर ऑफ दिस पोएट्री को, पर वो सिर्फ जजमेंट नहीं बता रही, वो दिखा रही है कि देखो जो मैं देख रही हूँ और मेरी जजमेंट भी देखो, दोनों चीज़ें देखो, मतलब कि and it's also कि you can no longer quiet me, which means कि it was able to quiet the poet at some point, कि she was like मैं कभी कि April was able to distract me. I think this is one of the best things, क्योंकि she's so accusing towards April, which is just nature happening. Like the personification works so well, because one knows that she's not really against April. Like it's not her, April is a device to her some feelings which we will discover and hints are there, but I really like it. Like ठीक है, next. The sun is hot on my neck as I observe the spikes of the crocus. What is crocus? Crocus search करना पड़ेगा, करना search. Anything cactus related, no? But makes no sense. Oh, crocus is a flowering purple plant. Wow, so beautiful. It's extremely beautiful, people. ठीक से दिखा दे. This is crocus. अच्छा, the sun is hot on my neck as I observe the spikes of the crocus. Okay, I think the what do you call it? Stalk within the flower. Okay. ठीक है, बहुत सुंदर फूल है basically. The smell of the earth is good. It is apparent there is no death. I think वो फिर से पैटर्न फॉलो कर रही है कि उसने, आई थिंक उसने थोड़ा सा उसने मूव करना भी शुरू कर दिया कि द सन इज हॉट ऑन माई नेक इज नॉट सच अ ब्यूटीफुल इमेज, जैसे क्वाइट फ्लावर्स ओपनिंग स्टिकली ब्यूटीफुल था, अब थोड़ा सा उसने मूव करना शुरू कर दिया कि सच्चाई तो दुनिया की ये है कि बहुत गर्मी है ब्रो, है ना? I think but the beauty still continues.
You treat it as an annoyance. मुझे सन इज हॉट ऑन माई नेक में ये लगा कि Oh, कि as an observer, I am not very comfortable, but कि no. हाँ ब्यूटी है, ये पर्पल फ्लावर उग रहे हैं, स्मेल ऑफ द अर्थ इज गुड, वो सब है, बट सन इज हॉट ऑन माई नेक मुझे Oh. वही एक गुस्से का एक टिंज लगा कि अरे यार गर्मी तो बहुत हो रही है टाइप्स। Hmm. फिर But what does that signify? इट इज एपरेंट देयर इज नो डेथ बट व्हाट डज दैट सिग्निफाई, ये बहुत हैवी लाइंस इसने मार दी हैं कि इट इज एपरेंट देयर इज नो डेथ बट व्हाट डज दैट सिग्निफाई। We are at the third point where this what does that signify is the third point where she's again talking to herself. इट इज एपरेंट दैट देयर इज नो डेथ में ही मुझे लगा वो तो आ गया, इट इज एपरेंट देयर इज नो डेथ। Oh, okay. बट इससे उसका मतलब क्या है, इट इज एपरेंट दैट देयर इज नो डेथ। कि the world is very beautiful. There is no death signifies mourning, sadness, a heaviness. But what she's saying is the atmosphere is extremely light and pleasant, and there is actually no reason to be sad. क्या वो ये मतलब उसने ये पॉइंट अभी क्यों मारा कि जैसे उसने ये सब I think this is also in the context of nature. कि winter, autumn kind of signify a bit of वो ना कि things are about to die or dry etc. But winter is going now, things are in full bloom. तो क्या उसने इस कंटेक्स्ट में मारा कि क्योंकि स्प्रिंग इज लाइक फिर से चीज़ें ब्लूम हो रही हैं, तो डिड शी से इट इन अ कंटेक्स्ट ऑफ कि डेथ होने के बाद फिर से लाइफ होती ही है, तो देर इज़ एक्चुअली नेवर एनी डेथ, देर इज़ नो डेथ का ये मतलब हो गया कि देर इज़ नेवर एनी डेथ, क्योंकि साइकिल की तरह चीज़ें फिर से जिंदा हो जाती हैं बेसिकली। Very interesting. I think I treated it as a momentary thing. कि there is no death right now. But no, could be the other thing. कुड बी कि ऐसा मे बी वो ये सोच रही हो कि बिकॉज स्प्रिंग वही तुम्हें बताता है ना कि डेथ के बाद लाइफ होती है, तो फिर डेथ जैसी कोई चीज़ ही नहीं है बेसिकली, क्योंकि वो तो लाइफ होती जाएगी, मतलब नेचर के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो डेथ क्या ही है, डेथ इज जस्ट वन पॉइंट इन द सर्कल, और फिर वो सर्कल घूमता रहेगा। I treated it as a momentary thing. This is also very interesting interpretation. कि there is it is apparent there is no death. कि you are a reminder that what is really death. What is really death, because it is always rebirth. I interpret it as कि there are phases in life. कि it's not कि death and life are part of life. कि your journey, but there are points when death usually is not a moment, right? Like for some preceding months before and after, it carries a heaviness. हो सकता है। So but there is a period when you have forgotten कि at some point there was death, you were feeling heavy. Now actually things are very light, pleasant. Okay, no bad things are happening, only good things are तुम happening. डेथ के बारे में नहीं सोच रहे हो, बट हो सकता है कि डेथ है, इट्स जस्ट दैट कि अभी प्रेजेंट रियलिटी में नहीं है। हाँ, अपने प्रेजेंट रियलिटी में इट इज नॉट कास्टिंग अ शैडो। ठीक है, बट व्हाट डज दैट सिग्निफाई? नॉट ओनली अंडरग्राउंड आर द ब्रेन्स ऑफ men eaten by maggots, life in itself is nothing. आई थिंक मेरे को इसलिए भी ये लगा कि डेथ उसने ओवरऑल शायद बात करी, बिकॉज तभी उसने ये पूछा कि तभी उसने ये बोला कि लाइफ इन इट सेल्फ इज़ नथिंग, डेथ जैसी कोई चीज़ नहीं है। स्प्रिंग तुम ऐसा बोल रहे हो, बट उसका क्या मतलब है कि डेथ जैसी कोई चीज़ नहीं है का क्या मतलब है? क्योंकि लाइफ भी कुछ नहीं है, लाइफ इन इट सेल्फ इज़ नथिंग। कि स्प्रिंग ने लेट से मुझे ये सिखाया जीवन में कि डेथ जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, क्योंकि विंटर के बाद स्प्रिंग तो आता ही है, तो डेथ इज़ लाइक अ टेम्पररी थिंग। कि इवन दो नेचर में हो ना हो व्हाटएवर, बट इट्स कि ह्यूमैनिटी में पीपल आर स्टिल गेटिंग करप्टेड। हाँ, ह्यूमैनिटी में नॉट ओनली अंडरग्राउंड आर द ब्रेन्स ऑफ मैन ईटन बाय मैगट्स, तो मेरे लिए एज अ ह्यूमन तो है डेथ, मतलब मेरे लिए एज अ ह्यूमन तो ब्रेन्स ऑफ मैन ईटन बाय मैगट्स हैं ग्राउंड के अंदर, उनके लिए उनको तुम ये नहीं बोल सकते ना जाके कि और डेथ तो है ही नहीं क्योंकि स्प्रिंग आता है। वो ये बोल रही है बेसिकली कि इट इज़ एपरेंट देयर इज़ नो डेथ, कि डेथ तो नहीं है क्योंकि सब साइकिल चलता है, पर व्हाट डज दैट सिग्निफाई, उसका क्या ही मतलब है एज अ ह्यूमन, एज यू सेड
कि एज अ ह्यूमन मुझे तो फील हो रही है ना डेथ, क्योंकि अंडरग्राउंड मैन हैं जो मैगट से ईट करे गए हैं, और लाइफ भी तो नथिंग ही है, लाइफ ने क्या ही कर दिया मतलब। फिर An empty cup, a flight of uncarpeted stairs. It is such a weird imagery. What I really like about a poem is life is nothing, and you can actually make very profound imagery, right? But in a poem where nature is so strong, suddenly uncarpeted stairs and empty cups are happening. It like it's so, to me it's very jarring. कि right. कि why is this important to the poet? Why did she choose these two images? Actually interesting. इतना नेचर की बात हो रही थी तो मुझे ये भी लगता है एक्चुअली दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, अगर लेट्स से मैं बोलूँ कि लाइफ इन इटसेल्फ इज़ नथिंग, और अब मैं कुछ इमेज सोचने की कोशिश करूँ, तो मुझे लग रहा है उसने शायद कॉन्शियसली मतलब आर्टिफिशियल वर्ल्ड की इमेजेस चूज़ करी। जैसे अगर वो नेचुरल वर्ल्ड की कोई भी इमेज चूज़ करती कि लाइफ इज़ इन इटसेल्फ नथिंग, अ ट्री, अ लैंड विदाउट ग्रास, अ समथिंग समथिंग, तो उसका पुराना वाला पॉइंट ही नल एंड वर्ड हो जाता है, क्योंकि उसने पुराने वाले पॉइंट में तो यही बोल दिया ना कि लैंड विदाउट ग्रास या जो भी विंटरी इमेजेस हैं उसके बाद तो स्प्रिंग आएगा ही। तो वो नेचर वाली इमेज चूज़ ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि नेचर के हिसाब से तो डेथ है ही नहीं, नेचर के हिसाब से तो डेथ टेम्पररी है और फिर स्प्रिंग आके रीबर्थ कर देता है। तो वो नेचर वाली कोई भी इमेज चूज़ करती तो वो पॉइंट ही उसका वॉइड हो जाता। तो उसने जानबूझ के फिर ऐसी नॉन नेचुरल इमेजेस चूज़ करी। I am very fascinated by uncarpeted stairs. It genuinely intrigues me, baffles me. Like, it works at an emotional level. I think let's read the rest of it. No, I think this is the end of that thought. So, life is nothing but an empty cup. Like, an empty cup essentially. This kind of reminds me of unfun, like, a lonely house. Oh, right. Cups are not being used. Like, carpeted stairs seems like something. I don't know. Like, stairs are uncarpeted, at least in India. like, हाँ मतलब एज एन इंडियन वी आर नॉट एबल टू रिलेट टू दिस इमेजरी सो मच, क्योंकि हमारी तो स्टेयर्स अनकारपेटेड ही होती हैं। बट हाँ, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि उसने जो इमेज बनाई है, इट इज़ लाइक अ लोनली एम्प्टी हाउस, विच इज़ वेरी गुड विथ हर आर्गूमेंट कि लाइफ इन इट सेल्फ इज़ नथिंग। क्योंकि लाइफ हमारे लिए क्या है, एज अ ह्यूमन हमारे लिए लाइफ है, हम घर में रहते हैं। अब घर में धूल लगी हुई है, एम्प्टी कप है, स्टेयर्स कारपेटेड नहीं है, तो हमारे पास घर भी है, हमारे पास लाइफ है, देयर इज़ नो डेथ। बट मैं क्या करूँ उस लोनली लाइफ का? वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इससे तुझे एक लोनलीनेस की फीलिंग आई, बिकॉज आई थिंक वही वो बताना चाह रही होगी कि मैं connected back to the previous thing, there is a undercurrent of emotion, that is where she is finally leading to, she personally is affected by all this is not a manifesto. राइट कि उसको पर्सनली ये तो कह रहा है, ये फीलिंग आई लोनलीनेस वाली, और वो एक लोनली बंदी थी, वो अपने घर से बाहर गई, उसने देखा कि भाई फूल खिले हुए हैं, गुलशन शी इज लाइक कि मैं क्या करूँ इन सब फूलों का कि मैं तो वापस घर में कुछ नहीं है, रो भी नहीं सकती, कोई मरा भी नहीं है क्योंकि आप घूमे जा रही है डिप्रेस वाले कि आपको एंजाइटी है। Oh God. That is a very good point actually कि हाँ, जो तूने इनिशियली बोला था कि इस बंदी को कुछ तो इंटरनल प्रॉब्लम है। अब ये जो भी अप्रैल के साथ जो भी बातें कर रही है, क्यों कर रही है ये, इसको इंटरनल प्रॉब्लम है कुछ तो इंटरनल प्रॉब्लम उसकी सीम्स लाइक कि उसके घर में अनकारपेटेड स्टेयर्स है, बेसिकली उसका घर बहुत लोनली है, तो वो उसके घर से बाहर निकली, वो उसने देखा मैं क्या करूँ फिर, मतलब क्या मतलब है लाइफ का, ब्यूटी इज नॉट इनफ, उसने बोल दिया कि मैं बाहर निकल के तुम्हारी ब्यूटी देख ली, पर ब्यूटी इज नॉट इनफ। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। फिर लास्ट लाइंस, It is not enough that yearly down the hill April comes like an idiot babbling in the room.
Actually, what the और fuck? it makes a lot of sense also in the way कि जैसे मतलब मैं बहुत सेंटिमेंटल इंसान हूँ, तो मुझे लव पोएम्स और पोएट्री में जनरली मोस्टली पोएम्स 70-80% पोएम्स तो लव पोएम्स ही होती है ना, कि तुम्हें किससे प्यार है या तो तुम उसके बारे में लिख रहे हो या तुम अपने प्यार में दुनिया को देख रहे हो और दुनिया तुम्हें प्यारी प्यारी लग रही है. तो दिस इज अ एग्जैक्टली करेक्ट काउंटर पॉइंट टू ऑल ऑफ दैट कि यार तुम्हारी जिंदगी में प्यार है ही नहीं, तुम लोनली हो, तो अब तुम्हें ब्यूटी में भी कुछ मजा नहीं आ रहा, बेसिकली तुम्हें नहीं दिख रहा कुछ भी. It's की loneliness is the default for this person. राइट राइट. Okay, because for many seasons, April was okay, the anger to April is not because okay, it reminds of the loneliness. Okay, it's because it does not. It is the distraction for the poet is not enough. April used to be a distraction. कि चलो के कुछ नहीं तो April is there. I'll go do something. मुझे तो लगता है कि वो भी है कि अप्रैल यूज्ड टू बी अ डिस्ट्रैक्शन जब उसकी जिंदगी में कोई था. Oh. कि तब अप्रैल इनफ हुआ करता था, क्योंकि तब उसको लगता होगा कि हाँ मैं इस बंदे के साथ घूम रही हूँ, फ्लावर्स में से क्या खुशबू आ रही है, वाह क्या हवा बह रही है. बट अब क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, उसके लिए ब्यूटी का कुछ मतलब ही नहीं बच गया, उसको कुछ दिख ही नहीं रही है ब्यूटी. काफी सही. आई थिंक हाँ, इसलिए भी जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, पोएम पढ़ के मज़ा ही नहीं आता है, बिकॉज और मोस्ट पीपल आई थिंक यही बोलते हैं कि यार पोएम में लोग ऐसे लिखते हैं, फॉरेस्ट इज कॉलिंग, ये वो, मुझे तो फील ही नहीं हो रहा है ये सब. तो इसलिए भी मुझे ये पोएम बहुत पसंद है कि हाँ मतलब कभी कभी नहीं फील होता है, बट उसके बारे में भी एक पोएम है कि नहीं फील होने के बारे में भी. कि there is an active, कि there is a very active poem about nothingness. Right, right, right. But it's not true nothingness. It's, Like it's an frustration. active emotion. Okay, I think it's what do you say? Bitterness. बिटरनेस. राइट. वो बिटरनेस के बारे में भी पोएम है. ऐसा नहीं है कि तुम्हें सब एकदम सुंदर और सबलाइन और वो सब दिखना चाहिए, कभी कभी नहीं मजा आता है. And what I really like about a lot of poems, including this one, is that they are. This is not a story. We do not know why this person is probably lonely. Okay, did they something bad? Did the life did bad for them? Okay, what happened? We know nothing about it, and that is so relatable. Okay, people can arrive at that point in various Right. journeys, but now everyone connects with that emotion. दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट कि उसने क्रक्स ऑफ इमोशन बता दिया है. अब तुम कहाँ से भी अराइव करो, अगर वो अपनी कोई स्टोरी बताने लगती तो हो सकता है कि हम स्टोरी से कनेक्ट ना कर पाते कि वो मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ ऐसा, बट वो इमोशन उसने ऐसा बताया जिससे हम कनेक्ट कर पाते हैं. कि काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि घूमने भी जाते हैं हम लोग. एक बार मैं घूमने गई थी बहुत पहले कहीं, तो पता नहीं थाईलैंड वगैरह कहीं, तो वहाँ बहुत सुंदर ब्लू बीच था, एकदम वाइट सैंड थी, पहली बार मैंने लाइफ में देखा था. बट मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था. मतलब क्या करूँ यार मैं इस ब्लू क्यों आई हूँ मैं यहाँ पे. तो वो इमोशन तो बहुत लोगों को बहुत अलग, और मुझे बिटरनेस की वजह से नहीं फील हो रहा था, मुझे वैसे पर्पसलेसनेस की वजह से कि फील हो रहा था कि मैं क्यों ही इतनी मेहनत कर रही हूँ, कि इतनी मेहनत करती हूँ, मैं छुट्टी लेती हूँ, पैसे खर्च करती हूँ, वीज़ा लगवाती हूँ, इतना स्ट्रेस लेके मैं यहाँ आती हूँ, ये देखने मुझे फील ही नहीं हो रहा कुछ भी. तो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि वो इमोशन तो फील ही करा होगा लोगों ने. क्या है, सही है, वेरी नाइस. ठीक है, एक और बार पढ़ते हैं. You read. Spring. Actually, Edna St. Vincent Millay is also turning out to be one of my favorites. मुझे Oh, लगता wow. है. Spring by Edna St. Vincent Millay. To what purpose, April, do you return again? Beauty is not enough. You can no longer quiet me with the redness of little leaves opening stickily. I know what I know. The sun is hot on my neck as I observe the spikes of the crocus. The smell of the earth is good. It is apparent that there is no death. But what does that signify? Not only underground are the brains of men eaten by maggots, life in itself is nothing. An empty cup, a flight of uncarpeted stairs. It is not enough that yearly down this hill April comes like an idiot, babbling and strewing flowers. Nice. ठीक है. Let us know guys, आपने कभी ऐसा बिटरनेस एक्सपीरियंस किया हो टुवर्ड्स ब्यूटी? मुझे मत दिखाओ ब्यूटी. Let us know in the comments. Yeah, bye bye. Bye, we'll see you next time. I will do.